مل کر سب سے پہلے حضور رحمت عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم جس نبی کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے میرا امام فرماتا ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ پورا مجمع محبت و عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر درود پاک کی ڈالیاں محبت کی تھالیوں میں سجا کر پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کافی وقت سے آپ تمامی حضرات پروگرام سماعت فرما رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں منبر نور پہ مقتدر علماء کرام، سجادگان، ائمہ کرام، حفاظ کرام تشریف فرما ہے۔ یہ سب میرے سر کا تاج ہیں۔ ان تمام کی موجودگی میں تھوڑی دیر کچھ لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ ایک شعر سن لیں کہ ایسی بلندیوں کے میناروں پہ جائیے، ایسی بلندیوں کے میناروں پہ جائیے، اٹھ کر زمین سے چاند ستاروں پہ جائیے، عظمت جو چاہتے ہو میرا مشورہ سنو، اللہ کے ولی کے مزاروں پہ جائیے۔ عظمت جو چاہتے ہو میرا مشورہ سنو، اللہ کے ولی کے مزاروں پہ جائیے۔ یہ وہ دعا ہے جو سب کچھ خرید سکتی ہے، تم کو مجھ کو خرید سکتی ہے۔ میں کیسے کہہ دوں کہ ولیوں سے کچھ نہیں ملتا، میں کیسے کہہ دوں کہ ولیوں سے کچھ نہیں ملتا، زبیدہ بی بی جب جنت خرید سکتی ہے۔ میں کیسے کہہ دوں کہ ولیوں سے کچھ نہیں ملتا، زبیدہ بی بی جب جنت خرید سکتی ہے۔ نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے۔ یہ شعر اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں اور یہ پوری گفتگو آپ حضرات میری سماعت کریں۔ نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ آج جب ہم دنیا کا جائزہ لیتے ہیں تو دولت والا ہے وہ بھی پریشان ہے اور غریب ہے وہ بھی پریشان ہے۔ امیر سکون کا متلاشی، غریب سکون کا متلاشی۔ آج ہر انسان چاہتا ہے اسے سکون مل جائے۔ جوان ہو وہ بھی سکون چاہتا ہے، بوڑھا ہو وہ بھی سکون چاہتا ہے، علم والا ہو وہ بھی سکون چاہتا ہے، غیر علم والا ہو وہ بھی سکون چاہتا ہے۔ پتہ چلا آج اس دنیا میں ہر انسان سکون کا متلاشی ہے، لیکن سکون ہے کہاں؟ کسی نے کہا سکون اس کے پاس ہے جس کے پاس میں دولت ہے، سکون اس کے پاس ہے جس کے پاس میں روپیہ پیسہ ہے، سکون اس کے پاس ہے جو بہترین بلڈنگ میں رہتا ہے، سکون اس کے پاس ہے جو نرم نرم بستروں پہ سوتا ہے۔ ہم نے شہر کے سب سے بڑے امیر سے پوچھا تیری امیری کا چرچا ہے، تیری رئیسی کا چرچا ہے، تیرے جگہ جگہ پلاٹس پڑے ہوئے ہیں، تیرے شہر میں کئی مکان بنے ہوئے ہیں، تو بہترین بلڈنگ میں رہتا ہے، تو بہترین گدے پہ سوتا ہے، بتا کیا تجھے سکون ہے؟ اس نے کہا جب تک دولت نہیں تھی تو اسے پانے کے لیے پریشان تھا، جب سے دولت آئی ہے یہی ڈر لگا رہتا ہے کہیں میری دولت چلی نہ جائے۔ میں نے چوکیدار دروازے پہ متعین کر دیے ہیں، جب تک نیند کی گولی نہیں کھاتا چین سے نیند نہیں آتی ہے۔ پتہ چلا دولت میں سکون نہیں۔ کسی نے کہا سکون اس کے پاس ہے جس کے پاس میں پاور ہے، جس کے پاس میں اقتدار ہے۔ شہر کے سب سے بڑے لیڈر سے پوچھا تیرے پاس اقتدار ہے، پاور ہے، کیا تو سکون میں ہے؟ اس نے کہا جب تک کرسی نہیں آئی تھی تو اسے پانے کے لیے پریشان تھا، جب سے کرسی ملی ہے یہی ڈر لگا رہتا ہے 5 سال کے بعد کہیں چلی نہ جائے۔ پتہ چلا کرسی میں سکون نہیں۔ کسی نے کہا سکون اس کے پاس ہے جس کے پاس جوان اولاد ہے۔ ایک ایسے بھائی سے بات کی جس کے 3 بیٹے جوان تھے۔ بھائی تیرے پاس جوان اولاد ہے، کیا تو سکون میں ہے؟ اس نے کہا مولانا جب تک اولاد نہیں تھی آستانوں کی خاک چھاندی تھی، درگاہوں کی خاک
खाक छान दी थी, जब तक औलाद नहीं हुई थी। कोई आलिम नहीं छोड़ा जिससे औलाद के लिए दुआ न कराई हो, कोई पीर नहीं छोड़ा जिससे औलाद के लिए दुआ न कराई हो। और जब से मेरी औलाद जवान हुई है, अब तो ये व्हाट्सएप और फेसबुक में लगी रहती है। कभी कभी तो इस औलाद की वजह से बदनामी की दहलीज तक पहुंच जाता हूँ। पता चला औलाद में सुकून नहीं, तो फिर सुकून है कहाँ? जब दौलत में सुकून नहीं, पावर में सुकून नहीं, इक्तिदार में सुकून नहीं, नरम नरम गद्दे और बिस्तरों पे सुकून नहीं, तो फिर सुकून है कहाँ? तो आओ कुरान से पूछते हैं। हर चीज का बयान कुरान के अंदर मौजूद है, हर चीज का जिक्र कुरान के अंदर मौजूद है। हीरे कुरान के अंदर मौजूद है, मोती कुरान के अंदर मौजूद है, सदफ कुरान के अंदर मौजूद है, गौहर कुरान के अंदर मौजूद है। और जिस मरीज को दुनिया के डॉक्टरों ने इलाज कर दिया हो, उसकी शिफा भी कुरान के अंदर मौजूद है। लेकिन शर्त यह है इतना इल्म होना चाहिए, शर्त यह है इतनी सलाहियत होनी चाहिए, शर्त यह है इतनी काबिलियत होनी चाहिए। हमने कहा एक कुरान रब ने इरशाद फरमाया है, वला रब्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। कोई खुशकोतर चीज ऐसी नहीं जिसका जिक्र कुरान के अंदर मौजूद न हो। ऐ कुरान तू बता, दौलत में सुकून नहीं, इक्तिदार में सुकून नहीं, पावर में सुकून नहीं, औलाद में सुकून नहीं, ऐ कुरान फिर सुकून है कहाँ? तो कुरान जवाब देता है, अल्लाह कान खोल के सुन लो, दौलत में सुकून नहीं, पावर में सुकून नहीं, इक्तिदार में सुकून नहीं, बेज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। कान खोल के सुन लो, दिलों को चैन मिलता है तो अल्लाह के जिक्र से मिलता है, दिलों को राहत मिलती है तो अल्लाह के जिक्र से मिलती है। ना दौलत से, ना दुनिया से, ना घर आबाद करने से, ना दौलत से, ना दुनिया से, ना घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। अब दिलों को चैन अल्लाह के जिक्र से मिलता है, लेकिन मिलता क्यों है? मुझे औलियाए किराम की अज़मत और शान बयान करनी है। उलमाए किराम मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा है, सबकी सादाते किराम की सबकी मुस्तजाब दुआएं लेते हुए मैं आपके सामने कुछ लफ्ज़कुशाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। दिलों को चैन अल्लाह के जिक्र से मिलता है, लेकिन मिलता क्यों है? तो सुनो, अल्लाह ने इंसान को दो चीजों से मुरक्कब किया है, एक है जिस्म, एक है रूह। जिस्म को अल्लाह ने चार चीजों से पैदा किया, आग, पानी, मिट्टी, हवा। यही वजह है कि जब इंसान बीमार पड़ता है तो उसका इलाज इन्हीं चार चीजों से होता है। डॉक्टर साहब किबला भी तशरीफ फरमा है, आप लोग भी डॉक्टरी लाइन से कुछ भाई ताल्लुक रखने वाले होंगे, आज अपना अपना इलाज उर्से मुकद्दस से करके जाइएगा। अल्लाह ने जिस्म को चार चीजों से पैदा किया, आग, पानी, मिट्टी, हवा। और जब इंसान का जिस्म बीमार पड़ता है तो उसका इलाज इन्हीं चार चीजों से होता है। जिस्म बीमार पड़ता है तो पता कैसे चलता है? जब बिरयानी अच्छी नहीं लगती तो जिस्म बीमार है, जब कोरमा अच्छा नहीं लगता तो जिस्म बीमार है, जब जर्दा अच्छा नहीं लगता तो जिस्म बीमार है। हजरात, जब दस्तरख्वान अच्छा नहीं लगता है तो जिस्म बीमार है, और जब जिस्म बीमार होता है तो इलाज दवा से होता है, और जब रूह बीमार होती है तो फिर उसका इलाज कैसे होता है? अब आप सोचते होंगे कि एक इंसान का वजूद और उसमें दो चीजें बीमार पड़ रही हैं, जिस्म अलग बीमार हो रहा है, रूह अलग बीमार हो रही है। हाँ प्यारे, जिस्म अलग बीमार होता है, रूह अलग बीमार होती है। जिस्म बीमार होता है तो पता चल जाता है कि जब खाना अच्छा नहीं लगता, जब दस्तरख्वान अच्छा नहीं लगता तो जिस्म बीमार है, और जब रूह बीमार होती है तो उसका पता कैसे चलता है? जब नमाजों में दिल नहीं लगता तो रूह बीमार है, जब रोजा रखना अच्छा नहीं लगता तो रूह बीमार है, जब साहिबे इस्तिताअत होने के बावजूद हज को जाना अच्छा नहीं लगता तो रूह बीमार है, जब मालिक निसाब होने के बावजूद ज़कात देना अच्छा नहीं लगता तो रूह बीमार है, जब झूठ बोलना अच्छा लगे तो रूह बीमार है, जब आलिमों की तौहीन अच्छी लगे तो रूह बीमार है, जब हाफिजों की इहानत अच्छी लगे तो रूह बीमार है, जब तुम्हारा नमाजों में दिल न लगे तो रूह बीमार है, जब मदरसों के ताल्लुक से खुराफात करना अच्छा लगे तो रूह बीमार है। अरे जब सदाकत अच्छी न लगे तो रूह बीमार है, जब अदालत अच्छी न लगे तो रूह बीमार है, जब जज्बे सखावत में मजा न आए तो रूह बीमार है, जब शुजाअत अच्छी न लगे तो रूह बीमार है। अरे जब जिस्म बीमार होता है तो इलाज दवा से होता है, और जब रूह बीमार होती है तो उसका इलाज कैसे होता है? तो आओ ये भी कुरान से पूछते हैं, ऐ कुरान तू बता, जब रूह बीमार होगी तो फिर उसका इलाज कैसे होगा? तो कुरान जवाब देता
देता है। 15वां पारा उठा के देखो, वो यसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी। ऐ महबूब आपसे रूह के बारे में पूछते हैं। रूह तो हुक्म रब का नाम है, रूह तो अल्लाह के हुक्म से एक शय है। कुरान ऐलान कर रहा है, पहले ये पता लगा रूह का ताल्लुक किससे है, पहले ये पता लगा रूह का कनेक्शन किससे है, पहले ये पता लगा रूह रिलेटेड किससे है, पहले ये पता लगा रूह कनेक्टेड किससे है। हमने कहा कुरान तू ही बता दे, तो कुरान जवाब देता है रूह तो हुक्म रब का नाम है, रूह तो अल्लाह के हुक्म से एक शय है। पता चला रूह का ताल्लुक परवरदिगार आलम से है, रूह का कनेक्शन मौला से है, रूह रिलेटेड मौला से है, रूह कनेक्टेड मौला से है। अरे जब जिस्म बीमार होता है तो इलाज दवा से होता है, और जब रूह बीमार होती है तो इलाज जिक्र खुदा से होता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। जब जिस्म बीमार होता है तो इलाज दवा से होता है, और जब रूह बीमार होती है तो इलाज जिक्र खुदा से होता है। यही वजह है कि बड़ी बड़ी खानकाहों में आपने देखा होगा कि वहाँ हल्क़े जिक्र की महफिल सकती है। हज़रात मेरे नबी से पूछा अय्यु ज़िक्रिन अफ़ज़ल या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सबसे अफजल जिक्र क्या है? नबी फरमाते अफ़ज़लु ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे बेहतर जिक्र कलमा शरीफ पढ़ना है, सबसे बेहतर जिक्र कलमा शरीफ पढ़ना है। हज़रात आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने बयान फरमाया है, आप अल मलफूज शरीफ के अंदर ये बात देख सकते हैं। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं जो 70,000 मरतबा कलमा शरीफ पढ़ करके किसी मरहूम के लिए ईसाले सवाब कर देगा तो अल्लाह ताला कलमे शरीफ की बरकत से उसको भी बख्श देगा जिसके लिए ईसाले सवाब किया जा रहा है, और उसको भी बख्श देगा जो कलमा शरीफ पढ़ने वाला है। तो हज़रात कलमा शरीफ यही खानकाहों के अंदर हल्क़े जिक्र की महफिल सकती थी, लाखों खींच करके इल्लल्लाह पे गिराते थे। इसका मतलब यह है कि गुनाह करने की वजह से दिल के अंदर काला नुक्ता पैदा हो जाता है, फिर वो पूरा दिल सियाही में तब्दील हो जाता है, पूरे दिल के अंदर फिर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र अच्छा नहीं लगता। फिर जलसों में आते हैं, देखते हैं कौन कौन मौलाना आया है, देख करके चले जाते हैं, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र अच्छा नहीं लगता। मस्जिद में जाता है तो बार बार घड़ी देखता रहता है, कब इमाम साहब नमाज पढ़ाएंगे मैं अपने घर पर जाऊं। क्यों? क्योंकि दिल गुनाहों की वजह से ऐसा सिया पड़ गया है, काला पड़ गया है। अब उसके अंदर शरीयत की बातें नहीं जाती, अब उसके अंदर अल्लाह और उसके रसूल की बातें असर नहीं करती। इसीलिए कलमा शरीफ का विर्द कराया जाता है कि जब इल्लल्लाह की ज़र्ब दिल पर पड़ती है तो इल्लल्लाह की ज़र्ब की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल की सियाही को दूर फरमा देता है और उसके दिल को मदीने वाले मुस्तफा का मदीना बना देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब दो चीजें मैंने जिक्र की, एक है जिस्म, एक है रूह। जिस्म को अल्लाह ने 4 चीजों से पैदा किया, आग, पानी, मिट्टी, हवा। रूह हुक्म रब का नाम है। उलमा जानते हैं कि रूह मरती मिलती नहीं है, मौत रूह को नहीं आती है, जिस्म को आती है। रूह तो निकाल ली जाती है बदन से, जिस्म मुर्दा हो जाता है। मौत रूह को नहीं जिस्म को आती है, रूह बदन से निकाल ली जाती है। अब रूह में भी दो बातें हैं, एक है रूह और एक है रूहानियत। जैसे इंसान, इंसानियत, आदमी, आदमियत। मैं प्यासा हूँ, शिद्दत की गर्मी पड़ रही है, मेरे आगे मुफ्ती बिलाल साहब किबला ने पानी ला करके रख दिया कि हजरत आप प्यासे हैं, पानी पी लीजिए। मैं पीने जा रहा था, एक भाई आ गया, बोला मुझे बहुत सख्त प्यास लगी हुई है। वो पानी उठा के मैंने उसको पिला दिया, हालांकि मैं भी प्यासा हूँ लेकिन मैंने नहीं पिया अपना पानी, उसको पिला दिया। ये इंसान नहीं बल्कि इंसानियत पिला रही है, ये आदमी नहीं बल्कि आदमियत पिला रही है। हजरात तो रूह का एक महदूद दायरा है, रूह एक महदूद दायरे में काम करती है। मेरे जिस्म के अंदर रूह है, मैं यहाँ हूँ, 1 मीटर तक मेरा हाथ काम कर सकता है, मैं पकड़ सकता हूँ। मेरी आंखें 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर तक देख सकती हैं, मेरे कान 1 किलोमीटर तक की आवाज को सुन सकते हैं या 500 मील की आवाज को सुन सकते हैं। जैसे भी आदमी की कुव्वत समाअत काम करे तो जिसके अंदर रूह होती है उसके लिए एक महदूद दायरा होता है, वो महदूद दायरे में काम करता है। क्या ऐसा है कि मैं यहाँ से कदम बढ़ाऊं और बरेली शरीफ की गलियों में कदम रख दूं? ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैं रूह वाला हूँ। ऐसा हो सकता है कि मैं यहाँ से हाथ बढ़ाऊं और रामपुर से कोई चीज उठा लूं, ऐसा भी नहीं हो सकता क्योंकि मैं रूह वाला हूँ। मैं
میں روح والا ہوں. علماء کرام روح والے ہیں. ارے جس کے اندر روح ہوتی ہے وہ اپنے محدود دائرے کے اندر کام کرتا ہے. لیکن اے پیارے مسلمانوں، آج جس اللہ کے نیک بندے کی ذکر کی محفل میں آپ آئے ہو، جن کے عرص پاک کی محفل میں آپ یہاں پر جمع ہوئے ہو، یہ صرف روح والے نہیں تھے بلکہ روحانیت والے تھے. کیونکہ جسے روحانیت کا مقام ملتا ہے وہ ماں کے شکم میں ہوتے ہیں تو لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سن لیا کرتے ہیں. جسے روحانیت ملتی ہے وہ فرماتے نظر تو الی بلاد اللہ جمعہ کا خردلۃ علی حکم اتصالی. میں اللہ کے تمام شہروں کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے کوئی اپنی ہتھیلی پر رائی کے دانے کو دیکھ رہا ہو. جسے روحانیت ملتی ہے وہ اپنی آواز کو جب ہوتے مدینہ منورہ میں ہے اور جبل پہاڑی پر اپنی آواز کو پہنچا دیتے ہیں حضرت ساریہ کے پاس میں. جنہیں روحانیت دے کر کے بھیجا جاتا ہے وہ میرا آقا امام حسین ہوتا تو کربلا شریف کے میدان میں ہے اور یمن سے آنے والے اپنے غلام کی کشتی کو کنارے لگا دیتا ہے. اللہ جسے روحانیت دے کر کے بھیجتا ہے اس کا نام مٹتا نہیں ہے. ہم نے دنیا کا جائزہ لیا ہے، ہم نے دنیا کا ماحول دیکھا ہے. آج کسی کو کسی کے لیے وقت نہیں ہے. آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو، میں نے دیکھا ہے اگر کسی کے یہاں پر کسی کا انتقال ہو جائے اور وہ فون کرے بھائی تمہارے عزیز کا انتقال ہو گیا، وہ پوچھتا ہے نماز جنازہ کب ہوگی؟ کہا کہ ظہر کی نماز کے بعد ہوگی. وہ اسی وقت جائے گا جب نماز جنازہ ہونے والی ہوگی. اگر کسی کے یہاں شادی ہوتی ہے پوچھتا ہے بھائی کھانا کب کھلایا جائے گا؟ کہا شام کو 7 بجے کھانا شروع ہوگا. تو وہ کھانے کے وقت میں پہنچے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس میں وقت نہیں ہے، اس کے پاس میں ٹائم نہیں ہے. انتقال ہو رہا ہے تب بھی اس کے پاس میں وقت نہیں ہے. کسی کے یہاں پر شادی ہے، خوشی کا موقع ہے، تب بھی انسان کے پاس میں وقت نہیں ہے. لیکن کیا وجہ ہے؟ آپ دکانیں بند کر کے ایک اللہ کے ولی کی محبت میں یہاں گرمی میں بیٹھے ہوئے ہو، اپنا کاروبار بند کر کے آج یہاں پر ایک اللہ کے ولی کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہو. دنیا سے جانے والے تو بہت ہیں، دنیا سے گزرنے والے تو بہت ہیں. کسی کے جانے پر مارکیٹ بند رہتی ہے، کسی کے جانے پر گاؤں کے اندر دکانیں بند رہتی ہیں، کسی کے جانے پر قصبہ بند رہتا ہے، کسی کے جانے پر شہر بند رہتا ہے. لیکن کیا وجہ ہے؟ دنیا سے جانے والے تو بہت ہیں لیکن ہر انسان کے لیے آج انسان کے پاس میں وقت نہیں ہے. لیکن آج جس ولی کے عرس میں آپ آئے ہو، پوری گرمی کے اندر آپ یہاں پر بیٹھ کر کے ایک اللہ کے ولی کے نام کی محفل میں یہاں جمع ہو کر کے ان کا ذکر پاک آپ سن رہے ہو. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ولی اس دارے پانی پر ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. ولی اس دارے پانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، زمین پہ چاند تاروں کی طرح تابندہ رہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. عرس کی محفل میں آپ آئے ہو، یہ صرف روح والے نہیں بلکہ روحانیت والے تھے. اور جسے اللہ روحانیت دے کر کے بھیجتا ہے اس کا نام کبھی مٹتا نہیں ہے، اس کا نام لوگوں کے دلوں میں نقش ہو جاتا ہے. رب قرآن میں فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا، اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں جما دے گا. حدیث پاک میں مفسرین کرام اسی آیت کے تناظر میں فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اللہ حضرت جبرائیل کو حکم دیتا ہے میں فلاں بندے سے محبت فرماتا ہوں، جبرائیل تم بھی اس سے محبت کرو. جبرائیل سارے فرشتوں میں اعلان کر دیتے ہیں، وہ سارے فرشتے پوری روئے زمین پر اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت فرماتا ہے، اے انسانوں تم بھی اس سے محبت کرو. یہی وجہ ہے کہ میرے غوث اعظم تو بغداد میں تشریف فرما ہے، میرے غریب نواز تو اجمیر میں تشریف فرما ہے، حافظ شاہ جمال اللہ رامپور کی سرزمین پہ تشریف فرما ہے، میرا امام بریلی شریف کی سرزمین پہ تشریف فرما ہے، شاہ جی میاں پیلی بھیت کی سرزمین پہ تشریف فرما ہے. لیکن جب جب 11ویں شریف کا موقع آتا ہے ہم غوث پاک کے نام کی محفل سجا کے بیٹھ جاتے ہیں. جب جب رجب کی 6 تاریخ آتی ہے ہم غریب نواز کی یاد مناتے ہیں. جب جب رجب کی 14 تاریخ آتی ہے ہم سید سالار مسعود غازی کو یاد کرتے ہیں. اور جب جب حضرات گرامی جب جب سفر کی 25 تاریخ آتی ہے ہم اعلیٰ حضرت کے نام کی محفل کو سجاتے ہیں. ربیع الاول کی 13 تاریخ آتی ہے ہم صابر پاک کی محبت میں کلیئر کھچے چلے جاتے ہیں. جب جب آج جس ولی کے عرس پاک کی محفل میں آپ آئے ہو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اللہ والے وہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کو راضی کیا ہے، اپنے رسول کو راضی کیا ہے. اور من کان للہ کان
अल्लाह लहू, जिसका अल्लाह हो जाता है फिर सारी खुदाई उसकी हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। सारी खुदाई उसकी हो जाती है। इन्होंने अपने रब को राजी किया, इन्होंने अल्लाह को राजी किया। अल्लाह ने इनके नाम को मिटने नहीं दिया बल्कि लोगों के दिलों में डाल दिया। आज आप कारोबार बंद करके, दुकानें बंद करके, अपने अपने कामों को छोड़ करके अल्लाह के वली की मोहब्बत में आकर के उनका जिक्र पाक सुनने लगे। हज़रात अब सुने औलियाए किराम की शान। एक होती है रूह और एक है रूहानियत। और अल्लाह जिसे रूहानियत दे करके भेजता है उसका नाम मिटता नहीं है। उसकी शान क्या होती है? आओ मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। बरेली शरीफ की सरजमीन पे चलते हैं। आप सोचोगे बरेली शरीफ की सरजमीन पर या आला हजरत का नाम लेंगे? नहीं। आप सोचोगे मैं मुफ्ती आजम का नाम लूंगा? नहीं। आप सोचोगे हुजूर हुज्जतुल इस्लाम का नाम लेंगे? मैं कहूंगा नहीं। आओ मैं आपको एक ऐसी शख्सियत का जिक्र करने जा रहा हूँ। नाम है हुजूर बशीर मियाँ, जिनका मज़ार बरेली शरीफ की सरजमीन पर है। आओ जरा देखो, सिलसिला देखो आप। हुजूर हाफिज शाह जमालुल्लाह, हाफिज शाह जमालुल्लाह के खलीफा हैं। हुजूर शाह दरगाही, हुजूर शाह दरगाही के खलीफा हैं। हुजूर अहमद अली शाह और हुजूर अहमद अली शाह मियाँ के खलीफा हैं हुजूर शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ। और शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ के दो खलीफा हैं, एक हैं अब्दुल बसीर मियाँ और एक हैं बशीर मियाँ। अब्दुल बसीर मियाँ जिनको अल्लाह वाले मियाँ कहा जाता है, उनका मज़ार पीलीभीत शरीफ की सरजमीन पर है। और एक बशीर मियाँ हैं जिनका मज़ार बरेली शरीफ की सरजमीन पर है। आओ बरेली की सरजमीन पे लेकर के चल रहा हूँ। बशीर मियाँ की ये आदत थी कि फजर की नमाज पढ़ने के बाद में गंगा नदी के किनारे चले जाते थे। एक झोपड़ी डालनी थी, उसी झोपड़ी में बैठ करके अल्लाह अल्लाह किया करते थे। उसी झोपड़ी में बैठ करके अपने रब को याद किया करते थे। तस्बीह पढ़ते रहते थे, नवाफिल पढ़ते रहते थे। एक इनके घर पर लंगर चला करता था। गरीब खाना खा के जाते थे, मिस्कीन खाना खा के जाते थे, परेशान हाल खाना खा के जाते थे। हजरात ये हमारे बुजुर्गों का तरीका रहा है। आज भी आपको खानकाहों पे लंगर का एहतिमाम मिलेगा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया तीबुल कलाम व इतामुत ताम। मेरे नबी फरमाते सबसे बेहतर अमल ये है कि लोगों से मोहब्बत से बात की जाए और लोगों भूखों को खाना खिलाया जाए और सलाम को आम किया जाए। हजरात गिरामी बुजुर्गाने दीन नबी की सुन्नत पर अमल किया करते थे। बशीर मियाँ के यहाँ लंगर चला करता था। एक मुरीद ने सोचा लाओ हमारे पीर के यहाँ लंगर चलता है, लाओ कुछ नजराना अपने पीर की बारगाह में दे दे। एक नोटों की गड्डी लेकर के बशीर मियाँ के पास में पहुंचा। बहुत गौर से सुनना बिलासपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, मैं रूहानियत दिखाना चाहता हूँ कि रूहानियत किसे कहते हैं। बशीर मियाँ के पास में पहुंचा, आपको सलाम किया, आपने जवाब दिया, बैठ गया पास में अदब के साथ में। जब आप जिक्र से फारिग हुए फरमाया किस लिए आए हो? कहा हुजूर लंगर चलता है आपके यहाँ पर। गरीब खाना खा के जाते हैं, मिस्कीन खाना खा के जाते हैं, परेशान खाना खा के जाते हैं, बेवाएं खाना खा के जाती हैं। हुजूर मैं चाहता हूँ कि लंगर के लिए थोड़ा नजराना आपको दे दूं ताकि उससे खाना खरीद लिया जाए, ताकि उससे गल्ला खरीद लिया जाए, ताकि गरीबों का पेट भर जाए। बशीर मियाँ के हाथ में नोटों की गड्डी रखी, आपने अपनी आंखों को बंद किया और उस गड्डी को उठा करके आग के अंदर डाल दिया। बराबर में आग जल रही थी, पूरी गड्डी नोटों की आग के अंदर डाल दी। उसने कहा हुजूर ये आपने क्या कर दिया? मैंने कितनी मेहनत से पैसे जमा किए थे, मैं कहां से पैसे जमा करके लाया था ताकि लंगर के लिए खाने के लिए आपको पैसे दे दूं। हुजूर आपने मेरी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। हुजूर ये आपने क्या कर दिया? अल्लाह के वली ने फरमाया खामोश। इतना कहा वो खामोश हो जाता है। आपने आग के अंदर हाथ डाला और नोटों की गड्डी निकाल के उसके हाथ पर रख दी और इरशाद फरमाया तू पहले मुझे ये बता दे, जब तू मेरे पास में ये पैसे लेके आया था तो इसके अंदर सूद के कितने पैसे लेकर के आया था? उसने कहा हुजूर 250 रुपए सूद के लेकर के आया था। जब उसने फरमाया अल्लाह के वली ने कि पैसे गिन, जब उसने पैसों को गिना तो जो 250 रुपए सूद के थे उसको आग ने जला दिया और जो हलाल कमाई के थे उसको आग ने नहीं जलाया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर भूरे मियां साहिब क़िबला, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर।
इरशाद फरमाते हैं अल्लाह के वली, हराम पैसे लेकर के मेरे पास आया, सूद के पैसे लेकर के मेरे पास आया। अरे नादान, तुझे क्या पता, इससे खाना खा के गरीब जाएंगे, उनके पेट के अंदर हराम लुकमा जाएगा, अल्लाह उनकी इबादत कबूल नहीं करेगा, अल्लाह उनकी नमाजें कबूल नहीं करेगा। आइंदा कभी मेरे पास हराम पैसा लेकर के मत आना। ये सूद कितना बड़ा गुनाह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूद का एक ढेला खाना अपनी माँ के साथ 36 बार जिना करने से भी बदतर है। बताओ, लोगों ने गाँव के अंदर कारोबार कर लिए हैं, अगर किसी के पास 5 लाख रुपए है, पैसे बांट दिए और उस पर सूद वसूल रहा है। प्यारे मुसलमानों, अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लज़ीना याकुलून रिबा, वो लोग जो सूद खाते हैं वो क़यामत के दिन उठेंगे, उनके पेट बाहर को निकले हुए होंगे और वो लुढ़कते पड़कते मैदान हश्र में जा रहे होंगे, फरिश्ते उनको मारते हुए ले जा रहे होंगे। ऐसा लग रहा होगा उन्हें देख के जैसे इन्हें किसी आसेब ने छू लिया है। हज़रात, उन लोगों के पेटों के अंदर सांप और बिच्छू होंगे। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, सूद हराम है। अल्लाह अकबर, जरा तारीख उठा के देखो, ये रूहानियत थी अल्लाह के वली की। इरशाद फरमाया कि ये हराम पैसे लेकर के मेरे पास आया है, लेकिन आज जब हम दुनिया का जायजा लेते हैं तो चोर चोरी करके आए और ला करके पैसे पीर के हाथ में रख दे, तो भी कहता है पीर जा, अल्लाह तेरे कारोबार में बरकत करे। चोरी करके आया तब भी पीर की जेब में ला करके रख दे। पीर उसे नहीं कहते जो तुम्हें टुकड़ियों में बांट दे, पीर उसे नहीं कहते हैं जो तुम्हें बिरादरियों में बांट दे, पीर उसे नहीं कहते हैं जो तुम्हें सिलसिलों में बांट दे, पीर उसे नहीं कहते हैं जो तुम्हारे अंदर खटास डाल दे, पीर उसे नहीं कहते हैं जो तुम्हारे अंदर इख्तिलाफ पैदा कर दे। अरे पीर उसे कहते हैं जो तुम्हारे सीने को मदीने वाले मुस्तफा की मोहब्बत का मदीना बना दे। पीर उसे कहते हैं जो तुम्हें मजहब इस्लाम के प्लेटफार्म पर ला करके खड़ा कर दे। पीर उसे कहते हैं। लेकिन आज जब दुनिया का मैं जायजा लेता हूँ तो एक पीर दूसरे पीर को गवारा नहीं करता। एक मिंबर पे जमा होना, एक मुरीद दूसरे पीर का, अपना अगर उसका पीर नहीं है तो वो नहीं चाहेगा कि वो पीर इस मिंबर पे आ जाए। मुझे बताओ, तुम्हारा पीर पहले है या मदीने वाले मुस्तफा का फरमान पहले है? तुम्हारा पीर बाद में है, मदीने वाले मुस्तफा का फरमान पहले है। अल्लाह का कुरान तुमसे कह रहा है, इन्नमल मुमिनूना इख्वा फअस्लिहू बैना अखवैकुम। मुसलमानों में मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, अगर इनमें इख्तिलाफ हो जाए तो उनके दरमियान सुलह करा दो, उन्हें जुदा ना करो बल्कि उनको मोहब्बत से मिला। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। तो जो मिलाएगा वही शरीयत पे चलने वाला होगा, जो इत्तिहाद का पैगाम देगा वही शरीयत पे चलने वाला होगा। आओ जरा देखो पीर किसे कहते हैं, पीर की शान क्या होती है। यही बनारस की सरजमीन है, अपने वक्त का एक अल्लाह का वली जिसे दुनिया वाले शहजादा आला हजरत हुजूर सरकार मुफ्ती आजम हिंद के नाम से जानती है। हजरात, सरकार मुफ्ती आजम हिंद की जरा जात मुलाहिजा कीजिए। पीर बनारस की सरजमीन पर एक थे डॉक्टर शहाबुद्दीन, वो बरेली शरीफ उर्स रज़वी में आया करते थे। एक दिन उनके ससुर साहब आ गए, बोले डॉक्टर साहब मैं बरेली नहीं पहुंच पा रहा हूं, क्या ऐसा हो सकता है कि आप मेरा नाम बल्दियत के साथ लिख करके ले जाएं और सरकार मुफ्ती आजम हिंद मुझे बरेली में मुरीद कर ले? बोले हाँ हो सकता है। हजरात, उन्होंने अपना नाम लिख करके दे दिया। 2-3 मोहल्ले के लोग और आ गए, नौजवान लड़के, बोले हम भी नहीं पहुंच पा रहे बरेली शरीफ, क्या ऐसा हो सकता है कि हमको सरकार मुफ्ती आजम हिंद बरेली में मुरीद कर ले? कहा हाँ हाँ क्यों नहीं हो सकता। उन्होंने भी नाम लिख दिए, तकरीबन 6 या 7 लोग हो गए। अब आ गए डॉक्टर शहाबुद्दीन बरेली की सरजमीन पर बनारस से चल करके। हजरात, जब आला हजरत अजीमुल बरकत के कुल शरीफ से एक दिन पहले यानी 24 सफर को शाम को सरकार मुफ्ती आजम हिंद अपने हुजरे में बैठे थे। रात के 10 बजे का या 9 बजे का वक्त था। आपने देखा मुफ्ती आजम हिंद अकेले बैठे हैं, इससे अच्छा मौका मुरीद कराने का नहीं मिलेगा। आए और आकर के कहा, हुजूर हमारे यहाँ के कुछ लोग आपसे मुरीद होना चाहते हैं, मैं उनके नाम बल्दियत के साथ ले आया हूँ। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने नामों पर्चे को लिया और लेकर के सबको मुरीद किया। डॉक्टर शहाबुद्दीन चले गए। जब बनारस में पहुंचे तो 2-3 दिन के बाद उनके ससुर आए और कहा कि डॉक्टर साहब हमको मुरीद करा दिया? कहा हाँ मुरीद करा दिया। कहा क्या 24 सफर को कराया था?
बोले हाँ 24 सफर को कराया था। क्या रात के 10 बजे कराया था? बोले हाँ रात के 10 बजे कराया था। बोले मैं उस दिन ईशा की नमाज पढ़ के जल्दी लेट गया, मैंने ख्वाब में क्या देखा, एक हसीन और जमील चेहरे वाले बुजुर्ग आके फरमाते हैं, कहो मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में दिया, कहो झूठ से बचता रहूंगा, कहो बुराई से बचता रहूंगा। कहा ठीक है हजरात, सुबह को लड़के आए, उन्होंने भी यही जवाब दिया कि रात हमारे ख्वाब में बुजुर्ग आए थे, उन्होंने हमसे यही कहा था। हजरात जब 1 महीने के बाद में बनारस की सरजमीन पर शहजादा आला हजरत सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की जब एक जलसे में दावत होती है और जब आप मिंबर रसूल पे बैठते हैं तो वो 6 लोग जो मजमे में बैठे थे डॉक्टर शहाबुद्दीन से एक जुबान होकर के कहते हैं, अरे डॉक्टर साहब 24 सफर की रात में रात के 10 बजे हमको मुरीद करने के लिए जो शख्सियत हमारे ख्वाब में आई थी वो कोई और नहीं बल्कि सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ही। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, हुजूर भूरे मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर। ये रूहानियत है, होते बरेली में है। जिसे अल्लाह रूहानियत देता है वो बनारस के मुसलमानों के ख्वाब में तशरीफ ले जाता है। इसे रूहानियत कहते हैं। जिसे रूहानियत का मकाम मिलता है अल्लाह उनका नाम मिटने नहीं देता। इसीलिए शायर कहता है दर्द आलाम के मारे हुए क्या देते हैं, दर्द आलाम के मारे हुए क्या देते हैं, हम तो बस उनकी निगाहों को दुआ देते हैं। बंदा बनना है जो उनका तो गदा बन इनका, जो फकीरों को शहंशाह बना देते हैं, जो फकीरों को शहंशाह बना देते हैं। और अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये है सरकार मुफ्ती आज़म हिंद। रूहानियत का मकाम मिलता कैसे है? रूहानियत का मकाम मिलता है शरीयत पर अमल करने से, बेशक बेशक, अल्लाह और उसके रसूल के फरमान पर अमल करने से। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का तसल्लुक फिर दीन देखे। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद एक बार जबलपुर MP तशरीफ ले जा रहे थे। आज जब हम तारीख पढ़ते हैं ना सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की और ताजुल शरिया का वो शेर पढ़ते हैं कि मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई, मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई, एक मेरे मुफ्ती आज़म का तकवा छोड़कर। तकवा परहेजगारी। MP के लोग नजराना दे के गए, हुजूर ये किराए के लिए हम पैसे दे के जा रहे हैं, हमारे यहाँ जलसे में तशरीफ ले आना। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद पहुंचे MP जबलपुर में, तो जलसे में जाने से पहले जो किराए को पैसे दे करके आए थे, जितने पैसे किराए में से बचे थे बाकी पैसे उनके हाथ पर रख दिए। सुभान अल्लाह, बाकी पैसे हाथ पे रख दिए। कहा हुजूर ये क्या? फरमाया ये किराए में से बच गए थे। फरमाया ये किराए में से बच गए थे। अल्लाह अकबर। और आगे देखें हजरात, और जब आप अशरफिया पहुंचे, जामिया अशरफिया मुबारकपुर, इधर देखिए आप, अल्लाह ने शैतान को बड़ी ताकत दी है, वो किसी भी तरीके से प्रोग्राम में खलल डलवा सकता है। आप मेरी तरफ तवज्जो दे, वो बच्चे हैं आपस में वो कर रहे हैं। जरा मेरे पास वक्त बहुत कम है क्योंकि जोहर की नमाज का वक्त होने जा रहा है। मैं कुछ जरूरी बातें आपको बता दूं। जरा मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कमेटी के नौजवान अगर हो तो वो उनको अखाड़े में पहुंचाया है, कहीं पर हो अगर बिलासपुर में, और आप हजरात मेरी तरफ तवज्जो दें। हजरात तो मैं अर्ज कर रहा था, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद जब अशरफिया पहुंचे तो अल्लामा अरशदुल कादरी साहिब क़िबला ने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद को पैसे दिए और कहा हुजूर ये मैं किराए के लिए दे रहा हूँ। तो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं मैं किराए का मौलवी नहीं हूँ। तकवा देखे, परहेजगारी देखे, मैं किराए का मौलवी नहीं हूँ। मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई, एक मेरे मुफ्ती आज़म का तकवा छोड़कर। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद जब MP को तशरीफ ले जा रहे थे तो आप बस के अंदर बैठे हुए थे। जोहर की नमाज आपने पढ़ ली थी, असर की नमाज नहीं पढ़ी थी। असर की नमाज का वक्त हो गया और जब असर की नमाज का वक्त हुआ, ड्राइवर से कहा बस रोक दो, मुझे नमाज पढ़नी है, बस रोक दो, नमाज पढ़नी है। ड्राइवर ने कहा कि मैं इतनी देर तक बस नहीं रोक सकता आपके लिए। तो कहा कितना वक्त लग सकता है? हुजूर हबीबुल उलमा मुफ्ती हबीब रजा खां हुजूर तहसीन मिल्लत के भाई कहते हैं मैं साथ में था हजरत के। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद उतर गए बस से,
نیچے اتر گئے. روک یا مت روک, پہلے میں نماز پڑھوں گا, پہلے اپنے رب کی عبادت کروں گا. اتر گئے نیچے, اور جب نماز پڑھنے لگے 5 منٹ ہو گئے, 10 منٹ ہو گئے, اور نماز پڑھ کے وظیفے میں بیٹھ گئے, آپ ذکر و اذکار کرنے لگے, ڈرائیور نے بس کو بڑھا دیا. حضور حبیب العلماء کہتے ہیں ہر طرف جنگل تھا, ہم نے سوچا کہ اب ہم کیسے جائیں گے. سرکار مفتی اعظم ہند اپنے رب کو یاد کر رہے تھے, اللہ اللہ کر رہے تھے. عصر کی نماز بھی وہی پڑھی, مغرب کی نماز پڑھی, پھر اس کے بعد وہاں سے پیدل چلے. 1 کلومیٹر تک پیدل چلے سرکار مفتی اعظم ہند. 1 کلومیٹر کے بعد دیکھا تو وہی بس کھڑی ہوئی تھی, اس بس کے اندر پنچر ہو گیا تھا, اس کا پنچر لگایا جا رہا تھا, ٹائر بدلا جا رہا تھا. حضرات گرامی, اس کے تمام سواریوں نے کہا تھا ڈرائیور اور کنڈکٹر سے, اگر تو اس اللہ والے کی شان میں گستاخی نہ کرتا تو تجھے یہ پریشانی دیکھنی نہ پڑتی. پتا چلا جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے. یہ ہے سرکار مفتی اعظم ہند. نماز کی پابندی, نماز کو اس کے وقت پہ ادا کیا. سرکار مفتی اعظم ہند ہمیشہ نماز کی پابندی کرتے رہے. روحانیت کا مقام ملتا ہے شریعت پہ عمل کرنے سے, روحانیت کا مقام حاصل ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پہ عمل کرنے سے. حضرات سرکار مفتی اعظم ہند نے نماز کی پابندی کی, نماز کو اس کے وقتوں پہ ادا کیا. اسی لیے اگر ہم واقعی سچے سرکار مفتی اعظم ہند کے دیوانے ہیں, واقعی ہم سرکار مفتی اعظم ہند سے سچی محبت کرتے ہیں, تو ہمیں نمازوں کی پابندی کرنا پڑے گی, ہمیں رمضان شریف کے روزوں کی پابندی کرنا پڑے گی. اگر ہم مالک نصاب ہیں تو ہمیں زکات دینی پڑے گی. اگر ہم صاحب استطاعت ہیں تو ہمارے اوپر حج فرض ہے, ہم کو حج کرنا پڑے گا. جب ہم شریعت پہ چلیں گے تبھی اللہ تعالیٰ ہم کو روحانیت کا مقام عطا فرمائے گا. اور جب بے نمازی قبر کے اندر جاتا ہے تو حدیث میں آیا ہے کہ ایک سانپ اللہ ایسا پیدا کرتا ہے کہ جس کے کئی فن ہوتے ہیں, کسی میں زہر, کسی میں پھونک. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس سانپ کی خاصیت یہ ہے کہ اگر اپنی پھونکار صرف زمین پہ مار دے تو قیامت تک سبزہ نہ ہوگے, قیامت تک سبزہ نہ ہوگے. وہ سانپ صرف پھونکار زمین پہ مار دے, وہ سانپ بے نمازی کے جسم میں لپیٹا لگا کر کے اپنا فن بے نمازی کے منہ کے سامنے کر کے کہے گا فجر پڑی ہے. اگر فجر پڑی ہوگی تو ظہر تک چھوڑ دے گا, اور اگر فجر نہیں پڑی ہے تو ظہر تک ڈستا رہے گا. وہاں موت تو آنی نہیں ہے, اب یہ سلسلہ چلتا رہے گا قیامت تک. میرا امام پکار کے کہتا ہے ان کو رحم آئے تو آئے, ورنہ وہ کلی مار ہے کیا ہونا ہے. چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. کل تو دیدار کا دن ہے اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے. بے نمازی کو اللہ تعالیٰ قبر میں سانپ کے ذریعے جو سانپ ڈستا رہے گا اس سے عذاب دے گا. اس لیے میرے بھائیوں, وہ سانپ جو صرف پھونکار زمین پہ مار دے تو قیامت تک سبزہ نہ ہوگے. جو آج گھاس, اناج, سبزیاں آپ دیکھ رہے ہو یہ سب بنجر ہو جائے, زمین صرف پھونکار مار دے, وہ بے نمازی کو قبر میں ڈسے گا. تھوڑے سے مزے کے لیے, تھوڑے سے لطف کے لیے تم نماز چھوڑ دیتے ہو, واٹس ایپ چلاتے ہو, نماز کے لیے وقت نہیں. فیس بک کے لیے وقت ہے لیکن نماز کے لیے وقت نہیں. ہمارے پاس دکانوں پہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے لیکن نماز کے لیے وقت نہیں. یاد رکھنا اللہ نے تمہیں دنیا میں کس لیے بھیجا تھا. رب فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو نماز کی پابندی کرو, نماز کے اس کے وقت, نماز کو اس کے وقتوں پہ ادا کرو. جب تم نماز کی پابندی کرو گے تو پروردگار عالم تم سے راضی ہو جائے گا, اس کا رسول تم سے راضی ہو جائے گا. پھر دنیا کے نظارے تمہارے لیے ہیں, عقبا کی بہاریں تمہارے لیے ہیں, پھر جنت کی بہاریں تمہارے لیے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. کان کھول کے سن لو, دلوں کو چین اللہ کے ذکر سے ملتا ہے, دلوں کو راحت اللہ کے ذکر سے ملتی ہے. میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ میرے کچھ عرض کرنے میں سبقت لسانی کی وجہ سے یا بتقاضۂ بشریت کوئی غلطی ہو گئی ہو, مولا مجھے معاف فرمائے.